ایسا جو روح کے اندر روح کے ساتھ بات کرتا ہے تو کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ باتیں روح کے تعلق سے کریں کہ جب مسئلہ حضوری آتی ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. آئیے کلام مقدس میں ہم ان باتوں پر غور کریں گے اور برکت پائیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ کیا کریں، دھیان لگانا اور غور سے ذرا ان باتوں کو سننا. خداوند نے جو آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کوئی خداوند آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی کچھ عجیب کام کرے گا. جب عجیب کام ہوتے ہیں تو پھر عجیب کاموں کے اندر کچھ کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن کیا کر رہا تھا، خدا عجیب کام کر رہا ہوتا ہے. اور ہم غور کرتے ہیں اور دھیان کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا، لیکن خدا تو عجیب اور مشیر قادر خدا ہے. ابدیت اور صلاح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، جس کی راہ جس کی پوشاک پہ یہ نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوند کا خدا ہے. وہ عجیب کام کر کے ثابت کر دیتا ہے کہ میں یہاں ہوں. ہاللیلویا. آئیے کلام مقدس میں جب پاک روح آ جاتا ہے تو پھر اس ٹائم ہوتا کیا ہے. یہ لوگ جب دیکھتے کہتے ہیں کی ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے، لیکن یہ تو پاک روح کی حضوری معموری ہے. آئیے کلام مقدس میں سے رومیوں اور اس کا 8 باب اور اس کی 26 آیت سے لے کر ہم 27 آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، غور کریں گے اور سنیں گے. سنیے گا. لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. ہاللیلویا. روح بھی ہماری کمزوری میں کیا کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے. کب مدد کرتا ہے؟ کہ جب ہم پاک روح کو کہتے ہیں کہ ہماری مدد کر، تب وہ مدد کرتا ہے. اور جب اسے سر چھوٹ کے بیٹھ جائیے، خاموش ہو جائیں، تو پاک روح بھی آپ کی زندگی کے اندر یاد رکھیے خاموش ہو جاتا ہے. آپ کے کاموں کے اندر، آپ کی شفا کے اندر، آپ کی برکت کے اندر، آپ کی ترقی کے اندر، آپ کی سرفرازی کے اندر، آپ کی عزت کے اندر وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے. اس کے وعدے ہیں، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا. پاک روح یقین کریں، میں نے کہا تھا کہ آج پاک روح کچھ عجیب کام میری اور آپ کی زندگی کے اندر کرنے والا ہے، ابھی ہو رہا ہے اور ابھی ہونے والا بھی ہے. پاک روح کے لیے زوردار تعریف ہے. وہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے. اگر ہم نہیں جانتے تو سنیے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ نہیں جانتے، تو میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ کو دعا کرنی چاہیے. کہنے لگا، مگر روح تو ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے. ہاللیلویا. مگر سانوں تو نہیں پتا کہ کنج دعا کرنی ہے، لیکن کیا پاک روح جو ہمارے بدنوں کے اندر ہے وہ الرٹ ہے، وہ آپ کا انتظار کرتا ہے کہ کب آپ دعا کرو گے، کب آپ اپنے ہونٹوں کو کھولو گے، کب اپنے لبوں کو کھولو گے، کب چلانا شروع کرو گے، کب آپ آہیں بھرو گے. وہ تو منتظر ہے، منتظر ہے. وہ تو دیکھتا ہے آپ کی راہ، وہ راہ دیکھ رہا ہے. لیکن کیا اسی خاموش سائلنس ہوئے، لیکن پاک روح بھی منتظر ہوں میں تیرا، دیکھتا میں تیری راہ. اس سے راہ دیکھتا ہے کب ان کے ہونٹ
इनके लब खुलेंगे। कब वो आपके लिए शिफायत करेगा? वो मुंतज़िर रहता है। और लिखा है कलाम के अंदर कि मगर रूह खुद ऐसियां है भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। कि मैं बयान करा सुने रब दा कहते कि करा होठ ही नहीं मेरे खोलते। कहता मेरे होठों पर पहरा बैठा, मेरे चेहरे पे निगाहबान बैठा। अगर होठ नहीं खुलते तो दुआ मांगे, खुदा से कहिए खुदा मेरे होठ नहीं खुलते, मेरे लब नहीं खुलते, मेरे चेहरे पे पहरा उठा दे। वाह, कहने से हो जाता है और पहाड़ मैदान हो जाता है। उखड़ो 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 उखड़ो। कोई कह के तो देखे कि मेरी जिंदगी के जो पहाड़ ने खुदावन वो उखाड़ दे, वो समुंदर में डाल दे। कहने से हो जाता है। और जब तक हम नहीं खोलते तब तक पहाड़ भी अंज खड़ोते रहते, सांड की तरह खड़े रहते। कहते कहीं कैसे करेंगे? यीशु नासरी के नाम के विच मैं कहता हूं अरे रहो, खड़े रहो, लड़ोगे जीतोगे यीशु मसीह नासरी के नाम के विच। फिर आप जीतेंगे जब आप खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, मायूसी से भागेंगे। तब मायूसी तो गुनाह है, या तो मायूस हो जाने फिर गुनाह तुपका हुआ फाड़ लेना जी करता इधर आओ, मुझे तेरी बड़ी लोड़ है। वो खींच लेता है अपने तरफ, लेकिन कह रहा है कलाम के अंदर वो दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। जानता दिलों को परखने वाला खुदा है। मैं तो बहुत दफा कहता हूं ओ ये तो खुदा है। जब बहुत सारे मौजज़ात होते हैं, होने वाले होते हैं, जब खुदा की कुदरत काम कर रही होती है, जब लोग क्या खुशी मना रहे होते हैं तो कहते हैं, गवाही देते हैं, तो मैं कहता हूं ये तो खुदा है। वो परखता है हमारे दिलों को, वो दिलों और गुर्दों के जांचने वाला खुदा है। मगर दिल ही लाबाद लाइलाज है। कलाम में लिखा है उसे कौन दरियाफ्त कर सकता है? वही जो दिलों का बुरा वाला है वो भी दरियाफ्त कर सकता है। दिल दे के तो देखो, दिल दे के तो देखो उसको। वो परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। हालेलुया। किनकी शिफायत करता है? किनकी शिफायत करता है? मुकद्दस बोलियो, अगर आप मुकद्दस है तो बोलिए। किनकी शिफायत करता है? मुकद्दसों की शिफायत करता है। और कि मुकद्दस ही बोलेंगे, कहेंगे हाँ साड़ी शिफायत करता है, क्योंकि वो किसी की शिफायत नहीं करता जब तक हम मुकद्दस नहीं बन जाते। ज़बूर में कहता है जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है वो ही खुदावन के पहाड़ पर चढ़ेगा। खुदा दे पहाड़ नूं जेड़े हाथ लांदे सी, गोडे क्या मेरे पहाड़ नूं हाथ ना लाना। मूसा इन लोगों से कह दे कि मेरे पहाड़ को हाथ ना लगाना, जो लगाएगा वो मर जाएगा। क्यों? मैं पाक हूं और पहाड़ भी मेरा पाक है। इसलिए वो कहता है इन हाथों से उनको हाथ नहीं लगाना। इसलिए क्यों कि इनके हाथ तो नापाक है। इन्होंने हाथ ते लहू ना रंगे, इन्होंने हाथ झूठ फरेब ना रंगे, इन्होंने मकर मुकारी ना रंगे हुए हाथ। एक कमांडित ने गुरूर दे नाल ये रंगे हुए ने। इसलिए इनको कह दे कि इस पहाड़ को हाथ ना लगाना। ज़बूर में कहता है क्योंकि जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है वो ही खुदावन के पहाड़ पर चढ़ेगा। मूसा कल्ला ही पहाड़ पे चढ़ गया। 6 लाख से ज्यादा लोग खुदा के पहाड़ पर चढ़ ना सके, नीचे ही खड़े रहे। खड़े होकर कहने लगे मूसा से, मूसा
जो कुछ खुदावंद कहेगा तो आकर हमें बता देगा। पाखरू जब हमारी शिफायत करना चाहता है, और रोमियो और उसके 8 बाब के अंदर पहली आयत के अंदर जब मैं कलाम मुकद्दस में देख रहा था तो उसमें लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। अब जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। जब हम खुदा यीशु मसीह में हैं तो फिर सजा कहा दिया? यहां तो दावा है, शराइत है इस बात के लिए कि जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। हालेलुया। पौलुस रसूल गवाही देता है, क्योंकि मैं ते आजाद हो गया। सच्चाई को ढूंढो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। पाखरू को ढूंढो तो पाखरू की करेगा? आजाद करेगा। पतरस बहुत बड़ी गवाही इस बात के लिए देता है कि अपनी नस्लों के लिए जबरदस्त कलाम मुकद्दस में उसने बयान अपना दिया और लिखा है कि मैं ये एमाल उसके 2 बाब के अंदर सुनिएगा, गौर करिएगा कि क्या कह रहे हैं। पतरस अपने लोगों से कह रहा है। पतरस ने उनसे कहा, पतरस की आवाज सुननी चाहिए। आप भी कान रखें, जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये रूह की बात है। पतरस रूह कुदस की कुदरत से भरा हुआ खड़ा हुआ बोल रहा था और उसने कहा कि तौबा करो और तुम में से हर रे अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। पहले तौबा करो, तौबा करो, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए ताकि खुदावन के हुजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। हालेलुया। ताज़ा होने के लिए माफी, तौबा करने की ज़रूरत है। जब तक हम सच्चे दिल से तौबा नहीं करते, ताजगी भी नहीं जी आती, हरियाली नहीं आती, शादाबी नहीं आती, तो फरेब मकर मकार लोग गिराने वाले ढेरों ढेर मिल जाएंगे। ये कलाम की बातें हैं। कहने लगा तौबा करो, तुम में से हर एक गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुदस के नाम में पाओगे। हालेलुया। रूह कुदस कब मिलेगा? जब हम तौबा करेंगे, जब हम बपतिस्मा लेंगे, तब बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर 9 नेम थे, फल 9 आपके लिए होंगे। वो मुंतजर हैं जो कलाम में लिखा है, नाम पाओगे। कहने लगा कि ताड़े लिए नहीं वादा, सुनिए किन के लिए? इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दौर के लोगों से भी है जिनको खुदावन हमारे खुदा अपने पास बुलाएगा। कहने लगा आपसे नहीं, आपसे, आपकी औलाद से, आपके बच्चों से, आपकी नस्ल दर से ये वादा है कि अगर तौबा करोगे, अगर बपतिस्मा लोगे तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। लिखा कलाम के अंदर। और उसने बहुत सी और बातें जिता कर उन्हें ये नसीहत की। खुदा के खादम जब रूह कुदस और आग के बारे में, जब तौबा के बारे में मनादी करते हैं तो बहुत सारी मिसालें, बहुत सारी गवाहियों से साबित करते हैं, जिताते हैं कि इसके बगैर निजात नहीं, इसके बाद रहाई नहीं, इसके बाद बहाली नहीं है, सरफराजी नहीं है। जिताते हैं। मैं बहुत दफा अपनी गवाहियों से भी साबित करता हूं कि इसके अलावा नहीं है। वो भी जिता के कहने लगा, नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। अपने आप को किससे बचाओ?
टेढ़ी कौम से है तो मसीह कौम है लेकिन नहीं मनती जड़ा ओदी गल नहीं मनदा उन सुटदा उतो थले हो गई जे बल्ले बल्ले जो बात नहीं मानते क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है ये सच्चाइयां हैं आसमान जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी ये तो कलाम है भाई जो कि इसमें लिखा है हम इसकी मनादी करते हैं 40 साल से मैं इसकी मनादी कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि तौबा करो और खुदा ने तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है रसूलों ने मनादी की तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है यूहन्ना बपतिस्मा ने मनादी की तौबा करो आसमान की बादशाही नजदीक है आज वही पुकार 4 करोड़ से भी या 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसकी मनादी कर रहे हैं मेरी दुआ है कि इन सालों के अंदर कई जो गुजर रहे हैं इनके अंदर मेरी दुआ है कि 400 करोड़ नहीं ये 800 करोड़ होने जा रहे हैं हालेलुया हालेलुया जोरदार ताली बजाओ कि 800 करोड़ होने के तुसी जा रहे हो ताकि नस्लें जा रही हैं सारे बच्चे जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर 800 करोड़ होने के लिए जा रहे हैं कोई रोक सकता है तो रोक ले ये तो यीशु नासरी जिंदा खुदा का बेटा है जिसके ये लफ्ज है जिसने ये कहा है रोक सकते हो तो रोक लो बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया कल के दिन ने कबूल किया उन्होंने फौरन क्या फादर बपतिस्मा ले गए कितने लोग तैयार हो गए बहुत सारे लोगों के अंदर से कलाम में लिखा है कि उसी रोज 3000 आदमियों का करीब उनमें शामिल हो गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशहूर रहे आने वाले संडे रोटी तोड़ने की रस्म है आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी आइएगा और अपने दूसरे साथियों को भी लेकर आएगा ताकि हम उस खून और गोश्त में शामिल होकर उस रस्म को कर सकें चर्च का टाइम 9:30 बजे है वक्त को गनीमत जानो के दिन बुरे हैं वो हमारी कमजोरी में ताकत बखशता है जब हमें दुआ करनी है तो वो फिर आए भर भर कर हमारी शिफायत करता है आगे सब आप कदम पर खड़े हो जाए और अच्छे खुदावन कहिए तो खुदावन मुझे भी आज आने भर भर कर दुआ करना सिखाओ मैं चाहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए थोड़ा सा आगे आ जाए मैंने कहा था कि आज खुदावन अजीब काम सब आ जाए चेयर छोड़ दे थोड़ी देर के लिए चेयर छोड़ 5 मिनट खुदावन ने अपन डाले कि आना ध्यान उन्हें कहा जब आए भरोगे अपने हाथों को खोलिए याद रखिए कि बंद हाथों को खुदा कभी बरकत नहीं देता अपने हाथों को खोलो ते बुलंद करो और ज्यादा नहीं 5 मिनट अपने होंठ और लबन खोलो उन्हें ताले खोल देना अगर नहीं खोल दे क्या यही दुआ करे खुदावन मेथों मेरा ताला नहीं खोलता मेरे लबाना आज तू मेरा ताला खोल दे और मैं आज तेरे हुजूर आह भर के ते मैं दुआ करूंगा हाँ आज मांग लीजिए मांगिए हमें गोश से आगे कर ले कब्जा है और उसके साथ हम दुआ में चले करले कब्जा है करले कब्जा है मालिक तू ही हर गम का है मालिक तू ही हर गम का है मरहम तू ही हर गम का है मरहम तू ही हर गम का है हर गम पे कब्जा
कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह। बोलिए सब बोलिए। कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह। कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। मालिक तू ही हर गम का है, मालिक तू ही हर गम का है, तू ही हर गम का है, हर गम तू ही हर गम का है, हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कभी नहीं बोला वो आज बोले। कर ले कब्जा है पाक रूह, 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 कब्जा करने दीजिए। पाक रूह, कर ले कब्जा है 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 पाक रूह। रानी तुझसे जुड़ती रहे अब, रानी तुझसे जुड़ती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, राहों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, राहों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक रूह। जब भी अपना मुँह मैं खोलूं, जब भी अपना मुँह मैं खोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलूं, मेरे मुँह पे कब्जा, मेरे मुँह पे कब्जा, मेरे मुँह पे कब्जा, मेरे मुँह पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, कर ले कब्जा है पाक
अपने हाथों को बुलंद कीजिए दोनों हाथों को। अगर आपके रूह पे उसने कब्जा कर लिया है, जितना बड़ा कब्जा आया जी ते उन्नी बड़ी ताली मारता बाकी थोड़ी बड़ी ताली उतनी बड़ी बरकत आपकी हुई